جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں دھرنے میں. محمود خان اچکزئی رات کے اس ٹائم تقریباً 9:15 ہو چکے ہیں اور دھرنے میں پہنچے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت پہنچ چکے ہیں دھرنے میں. محمود خان اچکزئی دھرنے میں پہنچ چکے ہیں 9:15 بجے. 9:15 بج چکے ہیں. محمود خان اچکزئی اس وقت دھرنے میں پہنچے ہیں ڈیرہ جیل کے باہر اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا استقبال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. حسین بھائی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. پھر آپ کو بتاتے ہیں. اچکزئی صاحب آپ بتائیے گا آج 6 گھنٹے ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ ایک منتخب ہے پورے صوبے کا وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی. اڈیالہ جیل کے باہر وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں, آپ کی مرضی. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. سر آپ قائل کریں گے دھرنا ختم کرنے پر؟ جی دھرنا ختم کرنے کے لیے قائل کریں گے؟ دھرنے تو ہم نے انشاءاللہ لگانے ہیں سارے ملک میں, اور جب سارے ملک میں دھرنے لگیں گے پھر نہ سپرنٹ کہیں رہے گا, نہ کوئی وزیر اعلیٰ رہے گا, نہ کوئی وزیر اعظم رہے گا. پھر خلق خدا راج کرے گی اور وہ بڑا خطرناک. آغاز کب سے ہوگا اس کا؟ وہ شروع ہو چکا ہے. یہ کیا ہے, آپ نے کبھی سنا ہے ایک صوبہ, پورا صوبے کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے, آپ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں, تو پاکستان کو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا رسپیکٹ دے رہا ہے صوبے کو؟ ایک پورا یونٹ ہے, فیڈریشن کا ایک یونٹ, اس کا ایک نمائندہ آپ کے کورٹ کے آرڈر پہ آیا ہے, اس کو آپ ملاقات کی جاتی, پھر کہاں رہے گا پاکستان؟ کس طرح چلے گا؟ یہ 18 گریڈ کا افسر مجھے وزیر اعلیٰ کو یا ایم ایل ایز کو یا سینیٹرز کو ملنے نہیں دے رہا. اگر ان کو تشویش ہے یا ہمیں تشویش ہے یا کسی کو تشویش ہے کہ عمران خان بیمار ہیں, تو کون سی بری بات ہے؟ یہ کیسٹ لے جائیں, وہاں سے اس کی دو فکرے ٹائپ کر کے لائیں, دکھائیں ان کو کہ جی میں ٹھیک ہوں. اگر آپ صحیح طریقے سے ملک چلانا چاہتے ہیں, وہاں کو کیمرے کے سامنے عمران خان سے پوچھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں, 6 گھنٹے سے بیٹھے ہیں, ایسے افواہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ایسے افواہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ کیا لے آئیں, 2 منٹ کی کیسٹ ہوگا, لوگ سن لے کے چلے جائیں. سر آپ سینئر سیاستدان ہیں, آپ نے اچھے برے وقت دیکھے ہیں پاکستان کے, یہ موجودہ حالات جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ بربادی. پاکستان میں آئین نہیں ہے. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پشتون سندھی نہیں جانتا, سندھی پشتو نہیں جانتا, پنجابی سرائکی جانتا ہے, بلوچی نہیں جانتا, بلوچی پشتو نہیں جانتا. ہم سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے آئین نے. اس کو آپ درخور اتنا نہیں سمجھتے. اس کو آپ, میں نے کہا ہے, الیکشن 3 مہینے پہلے یہ حوالدار اسپیکر آیا تھا, میں قصداً کہہ رہا ہوں جیل کے سامنے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے. اس کو قرآن دیکھ لو, وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ اس نے نہیں کہا. وہ آیا کہ ہماری بات فوجیوں کے ساتھ طے ہو گئی ہے, ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی اور نواز شریف وزیر اعظم ہوگا. اگر آپ نے یہاں کوئی بات کرنی ہے تو ہمارا جو موجودہ گورنر ہے, اس کے ذریعے کرنل فلانا, میجر فلانا, بریگیڈر فلانا, اس کو تو میں کہا ہوں. یہ جس کو میں حوالدار اس لیے کہتا ہوں, حوالدار اسپیکر آیا تھا. یعنی 75 سال کی ہماری جمہوریت کا یہ فائدہ. آخرین ہمارے کسی سے, اس کا بھی میں ذمہ وار. ہمارے نہ کسی فوجی سے دشمنی ہے, نہ کسی عالم دین سے دشمنی ہے, نہ کسی پنجابی, کسی انسان سے اس بنیاد پہ اپنے فاصلے ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم انسان ہیں, ہم انسان کی قدر کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اور ہم سب کا
25 करोड़ इंसानों का इत्तेफाक हुआ था कि इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी, आइन बालादस्त होगा, मुल्क की तमाम खारिजा और दाखिला पॉलिसियाँ इस पार्लियामेंट से निकलेंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? आप फौजी मुआहदे कर रहे हैं, पार्लियामेंट से नहीं पहुँच रहे हैं। आप लोगों को मिनरल्स की तरफ ले आ रहे हैं, हमसे नहीं कहाँ ले जा रहे हैं इस मुल्क को आप? अभी गजा में जो कुछ हो रहा है इसलिए हमें तशवीश में मुब्तला किया है। तुर्की बावजूद है कि इजराइल को तस्लीम करता है, नेतन्याहू कहता है तुर्क फौज हमारे पास नहीं आई और आपकी फौज पे इतराज़ नहीं हो रहा, जबकि आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं। उनमें जो काम इस इंटरनेशनल फौज के हवाले होगा उसमें एक काम ये भी है कि आपने हमास को गैर मुसल्लह करना है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, पहले भी हम शाह हुसैन के ज़माने में हज़ारों फ़लस्तीनियों या सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मार चुके हैं। अब हमारी फ़ौज जाके हमास के खिलाफ लड़ेगी? नेतन्याहू के लिए अपनी हमास को मरवाना है और हमारे दस्तखत से नहीं। हमारी कोई नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद। तब जिंदाबाद जब वो आइन के दायरे में रहेगी। हमें न किसी जज से झगड़ा, न किसी जर्नलिस्ट से झगड़ा। आप जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पिका क्या है, कहाँ पहुँचा दिया आपको? सीनियर जजेस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, क्या हो रहा है? नए नए तमाशे आ रहे हैं, रिश्वत तो नौज़ुबिल्लाह। अगर एक आदमी अपनी वफादारियाँ बेचता है एक टिक के निशान पे, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, उसको आप 90 करोड़ रुपये देते हैं। और गरीब जड़ी वो मजदूर पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूच का, फलाना का, उसको रोज़ाना नहीं मिलती मजदूरी, क्या होगा? हम प्रोपेगेंडा कर रहे थे, हमें बुरा भला कहा जा रहा था कि ये इमरान खान और ये फलाना ये सब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके मामे IMF ने कहा है कि आप चोर हैं, आपने 500 अरब चोरी किया। IMF कहता है 5,000 अरब, लेकिन कोई किसी के उसमें वो नहीं। अगर आप वफादारियाँ बेचते हैं आप अच्छे पाकिस्तानी, अगर आप किसी की वफादारियाँ खरीदते हैं आप अच्छे पाकिस्तानी हैं, और अगर आप कहते हैं कि बाबा खुदा को मानो, अल्लाह से डरो, आओ इस मुल्क को इंसाफ से चलाते हैं, कहते हैं ये जी हिंदुस्तान का एजेंट है, ये अफगानिस्तान का एजेंट है, इसको किसी ने पैसे दिए। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? हमारी अक्ल का इम्तिहान है। मैंने बार बार कहा है, हम बड़े छोटे लोग हैं, मुझ समेत हम बड़े छोटे लोग हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। शाहबाज सड़कें बना सकता है बेहतरीन, वो सड़कें की खूबसूरती कर सकता है, बड़े बड़े चिड़ियाघर बना सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स का सेवा नहीं है। आज हमारा खित्ता बड़े सांडों का के जदोजहद का मरकज़ बना है। अगर हमने अकल के नाखुन न लिए, चीन, अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान, इजराइल, ये हमारा खित्ता, रशिया, हमारा खित्ता मैदान जंग बन जाएगा। खुदा के माने मुल्क पे रहम करें, मुल्क पे रहम करें। सबके साथ ऐसे ताल्लुकात, कभी कहते हैं अफगानिस्तान से लड़ाई, क्या क्या फ़ायदा? धमाका हुआ लाल किले के करीब 20 आदमी मरे या 10 मरे, चचावतनी में होगा 200 आदमी मरेंगे, आगरा में होगा 300 आदमी मरेंगे, अफगानिस्तान काबुल में होगा 5। फ़ायदा क्यों? क्या खून की होली खेल रहे हो? बैठे आराम से, जी और जीने दो की बुनियाद पे एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल करके, एक दूसरे की लोगों के उसका एहतराम करके, वोट का एहतराम। क्या क्या आप कर रहे हैं? जीता कोई और है, बैठा कोई और है, ये क्या ये तमाशा? फिर आके आज भी मेरे हवलदार स्पीकर ने 11 आदमियों से हल्फ लिया, मैं खुदा को हाजिर नाजिरदार कर आइन हलदारी करो। कौन सा आइन? कौन सा आइन? जब आइन दरमियान में नहीं रहे फिर हमारा आपका रिश्ता क्या होगा? ऐसे लोग हैं सिंधियों में, पश्तूनों में, बलोचों में कि वो कहते हैं कि बाबा इन्होंने आइन तोड़ दिया है, अब नए आइन की बात होगी, नए इंसाज असम्बली। वो बुरान को बहुत शदीद कर देगी। तोबा करने मेहरबानी करें, बस ना आप हमें कुछ कहें ना हम आपको कुछ करते हैं, आप सब तोबा करते हैं, पाकिस्तान को चलाते हैं तरीके से।
इंसानियत से, वरना ये डंडे मन कितने लोगों को मारेंगे। आप फिरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था, क्या वो बच गया? उन्हीं मखूर मजलूम लोगों में अल्लाह पाक ने एक बच्चा पैदा किया, उसके घर में पला और उसने इनकलाब की रहनुमाई की। क्यों लोगों को वो कर रहे हो, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो? आए इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को चलाएं। इसमें चलाने का तरीका ये है, बस जमहूरी हुकूमत होगी, अदलिया अपने फ्रेम में आज़ाद होगी, जासूसी इदारों और अफवाज पाकिस्तान का जिस तरह आइन कहता है, पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। हमारे कोई किसी से दुश्मनी नहीं। जो जज आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद, जो जर्नल आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद, जो महमूद आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद, जो मुल्ला आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद। ये फार्मूला है। बिस्मिल्लाह साहब, सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की बहनें यहाँ आती हैं, वो यहाँ धरने देती हैं। आज सीएम साहब आए हैं, इन्होंने भी धरना दिया है। सारी नजरें तो आप पर है। इमरान खान साहब ने आपको नामजद किया है, जो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, तो उस प्लेटफॉर्म से तो अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि आप इजलास करते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। ये बताएं कि पीटीआई की नजरें आप पर हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? आपका इसमें करामी शबीर डार जियो कौन सी जियो कौन सी जियो जी। बात ये है, देखें इमरान खान की मेहरबानी कि उन्होंने हम पे भरोसा किया। इमरान खान सन 8 से जब हम इकट्ठे थे, जब लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त 36 पार्टियां थी, सबका वो ये था कि बाबा पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना है। बदकिस्मती से NRO, जिसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिली, NRO सिर्फ जमहूरी पाकिस्तान बिगाड़ने के लिए, NRO के तहत 9000 क्रिमिनल केसेस विड्रॉ हुए। ये 6वीं 7वीं ईस्वी का बादशाह भी नहीं कर सकता। 9000 केसेस। और उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे एक दोस्त ने कराची के लिए एक आदमी को नामजद किया, वो 15 साल हमारा गवर्नर था, उस पर 7 कत्ल के केसेस थे। इस तरह पाकिस्तान आप चलाएंगे, इस तरह चलेगा? हमारी कोई नहीं, हम ये कहते हैं बिस्मिल्लाह, हमें कोई वोट न दे, बल्कि हम पे पाबंदी लगाए। NRO तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, सारे केसेस बहाल हो गए थे। NRO तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, सारे केसेस बहाल हो गए थे। अपोजिशन के मैं होते यही हुए कह रहा हूँ, इसके बावजूद 9000 केसेस ड्रा हुए हैं। अब भी लोगों की ख्वाहिश है कि जिंदगी भर के लिए इस्तिस्ना। ये पार्लियामेंट है, जिंदगी भर के इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी को नहीं मिला। ये उनसे बड़े लोग हैं, ये उनसे बड़े लोग हैं। इस तरह पाकिस्तान चलाएंगे, इसको पाकिस्तान का नुमाइंदा कहेंगे ना बाबा ना। अच्छा मजबूत अपोजिशन होने के बावजूद 26वीं तरमीम कर दी गई, 27वीं मंजूर कर दी गई, वो कह रहे हैं 28वीं ला रहे हैं। अपोजिशन तकसीम है या वो मजबूत है? क्या कर, कोई नहीं मजबूत। करते रहे आप। जब मुल्क का ये मेयार होगा कि जो आदमी बकरा मंडी की तरह बिकता है वो वफादार पाकिस्तानी है, जो दूसरों की इज्जत खरीदता है वो वफादार पाकिस्तानी है, और जो किसी पे नहीं बिकता वो गद्दार है। बाबा ये गद्दारी हमें कबूल है। इस तरह नहीं चलेगा पाकिस्तान। अगर कोई जर्नल इस तरह चलाता है, ठीक है, पार्लियामेंट यहाँ बनी है, पार्लियामेंट की सिर्फ एक ड्यूटी है। सब बदकारियाँ जब एक हुकूमत कर लेती है तो इसी रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से एक करारदाद आ जाती है कि जी इस 10 साल के तमाम केसेस ख़त्म। इस दिन के लिए आपने रखा है। आए राइम करें मुल्क पे। इसे मुल्क एटम बम रखने वाला मुल्क, दुनिया जहान की नियामतों से पुर मुल्क, जितनी जो नियामतें अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान की इस पाकिस्तान में है, फिर क्यों हमारे 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे? इस तरफ सोचो। आए पाकिस्तान को चलाएं, जो भी बादशाही हो, परवाह नहीं, बादशाह करें, लेकिन रहम करें। देखें, आप कह रहे हैं कि आपकी मकबूल तरीन पार्टी है, PTI इतनी है,
लेकिन जब भी धरना दिया जाता तो कारकुन बिल्कुल कुछ नहीं होते। लास्ट टाइम मंगल में भी पूरे पंजाब में कारकुनों को बुलाया गया, उस वक्त भी 500,000 कारकुन आए थे। तो वैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है। हमने कॉल ही नहीं दी। जब बुलाएंगे ना तो फिर जो है आपको सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।